السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، چند روز قبل میری ایک تقریر میں نے نشر کیا تھا ہندوستان کے امن و امان کو اور یہاں کی فضا کو خراب کرنے والے ایک پاکھنڈی گیدڑ سوامی نرسنگھانند کے خلاف، جس نے اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کو نشانہ بنا کر بہت گندے الفاظ استعمال کیے، جس کو مسلمان تو کیا ایک سیکولر قسم کا ہندو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں، اس پاکھنڈی کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تجھے تیری باتوں پر اتنا یقین ہے، وشواس ہے، جو کچھ تو بول رہا ہے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو آ جا ایک میدان میں ہم سب کے سامنے آگ لگا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میں بھی داخل ہوں گا، تو بھی داخل ہو جا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ تیرا پاکھنڈ کہاں ہوگا اور ہمارا حق کہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میرے عزیزو، مسلسل 5 دنوں سے میری یہ للکار چلتی رہی۔ ہم نے آج سے تقریباً 5 دن پہلے اس پاکھنڈی پر جو سپرے مارا تھا تو ایک کیڑا باہر نکل آیا ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا باہر نکل آیا، باقی اس گیدڑ کی طرف سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا، اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پھر آج بھی یہ تقریر اس چھوٹے کیڑے کے جواب کے لیے نہیں، اس پاکھنڈی کو دوبارہ چیلنج کرنے کے لیے بنا رہا ہوں، دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے اس سے قبل والی تقریر میں بھی کہا کہ ہم لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، جنگ و جدال قتل و قتال نہیں چاہتے، امن و امان سے رہنے کی تلقین اسلام نے بھی ہمیں دی ہے، لیکن تم جو زہر پھیلا رہے ہو، اے میرے عزیزو، جس نے اپنے آپ کو مہنت کہا، سادھو کہا، سنت کہا، اس کی حیثیت پاکھنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ خود بلاತ್ಕಾری ہے، وہ خود گنڈا ہے، وہ خود دلال ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا اس مہنت اور سادھو سے میں کہتا ہوں تمہارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دین کے مقدس شخصیت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرو گے؟ میں نے آج تک ہندوؤں کے کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے کبھی ایسے شبد استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی یا اس سے قبل بھی جو اسلام کے خلاف آئے، میں صرف اسی کو نشانہ بناؤں گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، آج میں 2 میسج نشر کروں گا۔ پہلا میسج ہندوؤں کے لیے، دوسرا میسج مسلمانوں کے لیے۔ ہندوؤں سے میں یہ گزارش کروں گا، میرا جو چیلنج ہے، میری جو تقریر ہے، وہ ہندوستان کے سارے دیش واسی ہندوؤں کے لیے نہیں ہے۔ جو امن و امان سے رہنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی امن و امان سے رہیں گے۔ میرا چیلنج صرف اس پاکھنڈ کے لیے ہے جو یہاں کے بھائی چارے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور دین کو بار بار نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں، اگر تجھے کسی مسلمان سے تکلیف ہے تو ڈائریکٹ مسلمان کو جو کوسنا ہے کوس لے، مجھے جو بولنا ہے بول لے، لیکن میرے رسول پاک کی شان میں ایک جملہ بھی استعمال نہ کر، قرآن کے متعلق نہ کہہ۔ میں سارے ہندوؤں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا سارے پنڈتوں سے، سارے سنتوں سے، سارے مہنتوں سے، سارے سادھوؤں سے یہ چیلنج نہیں۔ جو اسلام کو غلط ٹھہراتا ہے، جو قرآن پاک کو غلط ٹھہراتا ہے، جو رسول پاک کو غلط کہتا ہے، وہ میرے چیلنج کے سامنے آئے۔ پہلا تو میں نے اسی گیدڑ اور پاکھنڈی کو کہا تھا کہ وہ سامنے آئے، اور دوسرا میرا میسج مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے میرے عزیزو، میں نے اس سے قبل بھی جو اپنی تقریر میں آواز دی ہے، اس لیے کہ میں تھک چکا ہوں ان کے سارے ڈیبیٹ سن کر کے، ان کے ساری باتیں سن کر کے، اس لیے آج ضروری ہو گیا تھا کہ میں مباہلے کا چیلنج دے دوں۔
और सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट किया है। हर जगह से मुझे सराहा गया है, हर खानका से अल्हम्दुलिल्लाह दुआ आई है, हिंदुस्तान की हर सुन्नी खानका से हमारे लिए दुआ आई है और सबकी पुष्ट पनाही रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये जो कीड़े मकोड़े बीच में आएंगे इनसे आप परेशान ना होना, इनसे आप परेशान ना होना। हमने जिसको ललकारा है वो गीदड़ एक बार बाहर तो आ जाए, वो आ जाए, हम उसके जवाब का इंतजार करते हैं। अब बहरहाल मुसलमानों के लिए मैंने जो मैसेज रिकॉर्ड करना था वो ये था कि मैं आज भी अपने उस मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूं, आज भी बरकरार हूं। वक्त आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज मैं हाजिर होऊंगा जिस जगह पर भी, लेकिन मेरी शर्त यही है कि जो भौंक रहा है रसूल पाक की शान में वही मेरे सामने आए, वही मेरे सामने आए, जिससे मेरा मुकाबला है वही आए। अब इस एक कीड़े को भी मैं थोड़ी सी बात कर लूं, मैं अपना वक्त उसके लिए जाया नहीं करना चाहता। मैं तो आज अपनी तकरीर में उसका नाम भी जिक्र नहीं करना चाहता। बस एक कोई छिछुंदर है शक्ल का और कोई इब्ने बंदर है, शायद इसी वजन पे उसका नाम भी है। कोई छिछुंदर की शक्ल का है और इब्ने बंदर है। एक इंटेलेक्चुअल आदमी सुन करके खुद ही समझ जाएगा कि ये बेचारा ऐसे ही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान। बहरहाल आ भी गया है तू, बड़ी हिम्मत करके 5 दिन के बाद तूने वीडियो बना भी लिया। अब जिस छिचुंदर ने ये वीडियो रिकॉर्ड की और ये कह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, पहली बात तो मैं पूरे आप तमाम लोग उसकी वीडियो को देख करके उसकी कायरता को समझ लें। आखिर में वो ये कहता है कि हमारे एक छोटे से बच्चे से शास्त्रत कर लो, यानी डिबेट कर लो, उसके बाद अग्नि परीक्षा करेंगे। अच्छा, बच्चे से तू डिबेट करवाएगा? मैं तो पहली ही बात कर रहा हूं कि डिबेट के लिए अगर तैयार है तो बच्चे की क्या बात है, उसी पाखंडी को बुलाओ, जिस मैदान में कहो, जिस कमरे में कहो, जहां पर कहो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फकीर हाजिर होगा। पहले तूने चैलेंज किया है शास्त्रत की, यानी डिबेट की, उसका भी मैं जवाब देता हूं। मेरी शर्त है मैं हाजिर हूं, शास्त्रत करना है, डिबेट करना है, मुनाजरा करना है। मेरी एक शर्त होगी, तू अपनी मुकद्दस किताबें लेकर के बैठेगा, चाहे तुम्हारी मुकद्दस किताबों में जो भी आए उनमें से पूरी मुकद्दस किताबें तू एक बैठक में सुना करके मुझे दिखाएगा। पहले बगैर देखे तेरी अपनी किताब मुझे सुना करके दिखा, और फिर इंशाअल्लाह उसी महफिल में मैं पूरा कुरान पाक एक बैठक में सुना के दिखाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा शास्त्रत का ये सिलसिला शुरू होगा। मैं अपना कुरान बगैर देखे सूरह फातिहा के शुरू से लेकर वन्नास तक एक मजलिस में सुनाऊंगा, और तू जो शास्त्रत के लिए आएगा अपनी किताब पहले बगैर देखे सुना दे, उसके बाद हमारा डिबेट शुरू होगा। ये पहला चैलेंज तेरा। और मैं जानता हूं कि ये एक नाजायज उसकी तरफ से आया है, उसकी तरफ से, यानी उस पाखंडी नरसिंहानंद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, एक कीड़ा आया है बहरहाल। और वो डिबेट की बात करें छोटे से बच्चे से, खैर मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है, तारीख दे दे और मेरी ये शर्त कबूल करके आ जा। मैं मेरी किताब सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तेरी अपनी किताब पूरी बगैर देखे तू सुना। दूसरी बात, अग्नि परीक्षा के लिए, अग्नि परीक्षा देने की बात तू कर रहा है। आखिर में ये कीड़ा कहता है चुचुंदर कि हमारा एक सन्यासी आएगा, हमारा एक सन्यासी आएगा। क्यों? नरसिंहानंद की क्या धोती गीली हो चुकी है? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? कोई सन्यासी आएगा तो क्या वो अपनी मंदिर में बैठ करके जो भौंकता है उसको क्या? अच्छा, मैं ये बात ये भी कहूंगा, ये जो चिचुंदर आया है बड़ी हिम्मत से, तू आ तो गया 5 दिन के बाद, जरा और हिम्मत कर ले और तेरे बाप को मना करके मैदान में ले आ जा। तेरे बाप नरसिंहानंद को मना करके लेके आ जा। मैं तमाम सुन्नी मुसलमानों से कहूंगा, उसके फैलाए हुए ये तमाम फरेब को हरगिज आप धोखे में मत लेना। अच्छा, तीसरी एक बात, इसने चैलेंज एक्सेप्ट करने के बारे में बार बार ये कहा है, दिल्ली पहुंचेंगे, रामलीला पहुंचेंगे, रामनवमी के दिन पहुंचेंगे। अब ये तो बात सारे लोगों को, हिंदुस्तान के देशवासियों को सबको मालूम है, रामलीला में रामनवमी के दिन होता क्या है?
सीधी सी बात यह है कि गीदड़ हमेशा भीड़ में आता है। और मैंने तो 8 दिन की बात कही थी। रामनवमी तो अभी शायद तकरीबन 21 तारीख को, अभी काफी दिन बाकी हैं। मैं तो बहुत बेकरार हूं, जल्दी से आ जाओ। अभी 21 अप्रैल तक मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिन बाकी हैं। मैंने 5 दिन कबल चैलेंज किया था 8 दिन के अंदर, तो 8 दिन होने में अभी 3 दिन बाकी है। 3 ही दिन के अंदर आ जा, या तो फिर उसी को वीडियो में आकर के कहने के लिए कह दे कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, रामलीला मैदान में आऊंगा 3 दिन के अंदर। सिर्फ 3 दिन के अंदर वो एक्सेप्ट करे। और रही बात, आग भी तुम्हारी होगी, सब आग तुम्हारी होगी। जिसकी तुम परसों से पूजा करते आए वही आग लेकर के आओ। आग भी तुम्हारी होगी, हुकूमत से परमिशन और सारे इंतजामात भी तुम्हारे होंगे। और रामलीला मैदान में रामनवमी के दिन नहीं, इसलिए कि हमें भोले भाले हिंदुओं को और मुसलमानों को लड़ाना नहीं है। मैंने अपने किसी ईद के दिन तुम्हें नहीं बुलाया है, आम दिन में। हाँ, एक बात याद रखना, ये अगर मुबाहला होगा तो परमिशन के साथ पुलिस अधिकारी भी होंगे, सरकारी अफसरान भी होंगे, न्यूज़ चैनल के सारे मीडिया के एंकर्स भी होंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे उलमाए अहले सुन्नत व जमात और सूफिया और मशाइख की एक बड़ी जमात भी होगी इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो जुमलेबाजी करते हैं हम? तुम क्या समझते हो कि हम ऐसे ही अल्फाज उड़ाते हैं? ये बात मैं कुरान अजीम की हक्कानियत को बयान करने के लिए कह रहा हूं। और मुसलमानों याद रखना, अगर ये मुबाहला हो गया, आग में मैं चला गया, तो ऐ मुसलमानों इसमें मेरी कोई फजीलत नहीं होगी, मेरी कोई फजीलत नहीं होगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये वाज़ेह करना हुआ, आग में मैं दाखिल भी हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हक्कानियत होगी, कुरान की हक्कानियत होगी और रसूल पाक की होगी, मेरी अपनी फजीलत के लिए नहीं होगी। ये बात याद रख लेना। मैं अपनी नामवरी के लिए हरगिज़ चैलेंज नहीं कर रहा हूं। और फिर सन्यासी आएगा तो ये बात पहले ही से कह दे, इस तरह के अगर मुझे भेजना होता आग में कूदने के लिए, मियाँ हमारे यहाँ हर मुहर्रम की 10वीं को आग में लोग खेल जाते हैं। अगरचे अलग बात है कि मैं उस पर कुछ तबसरा आज नहीं करूंगा, आम नौजवान आग में खेल जाते हैं। अगर मुझे चैलेंज करना होता तो मैं दिल्ली 1 लाख लोगों को आग में कूदने के लिए कहता। मैं हरगिज ये किसी और पर डालना नहीं चाहता। मैं अगर ये चैलेंज करता तो मेरे अपने दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मुकद्दस चेहरे मौजूद हैं जो आले रसूल हैं, सादात हैं, और उनके चेहरों में इतना दम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक उनमें से कोई खानका से मैदान में आ जाए, वहीं हक व बातिल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ फैसला हो जाए। लेकिन मैंने उनका भी नहीं जिक्र किया। मैं ना आम लोगों के लिए कहा, ना अपने बुजुर्गों के मुतालिक कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मारहरा मुतहरा भी है, कछोछा मुकद्दसा भी है, बरेली शरीफ भी है, बदायूं भी है, जामिया अशरफिया भी है, बहुत सारे ऐसे मुकद्दस खानकाएं हैं। मैं सबके नाम अभी जिक्र नहीं कर पाता, जैसे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, सरकार गरीब नवाज की दरबार, हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनमें से किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूं, सिर्फ एक अदना खादिम होने की हैसियत से मैंने चैलेंज किया था। उस गीदड़ को फिर से कहता हूं, दोबारा मेरे चैलेंज को सुन। 8 दिन का टाइम दिया था, अब टाइम जो लिमिट थी उसको हटा देते हैं। जा तेरे बाप नरसिंहानंद को कह दे 8 दिन का नहीं, अब क़यामत तक का टाइम देता हूं। जब तेरे दिल में आ जाए आ जाना और कह देना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आग में हम दाखिल होंगे। इसलिए कि मैं अपने इस्लामी अकीदे के एतबार से इतना जरूर जानता हूं, मेरे पुरखों को इस छिचुंदर ने बहुत झिझोड़ा है, कहा है 3-4 पुश्तों के बाद जाकर के देख लेना कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह तो 3-4 पुश्तों की बात करता है, 70 पुश्तें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस्लाम में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सय्यदी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल में से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, आल की बात अलग है, नसब पे फख्र नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर है
अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि उम्मत के उलमा नबियों के वारिस होते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। अंबिया के वारिस हैं उलमा, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद जरूर फरमाए, घबराने की कोई बात नहीं है। आखिर में फिर चैलेंज करता हूं, उस छिचंदर से कहो, वो बार बार मेरी तकरीर को कट करके बता रहा है, लड़ने की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं, बंद कमरे में मीटिंगें कर रहे हैं। अरे मियां, हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन सा बंद कमरा, हम बरसरे ऐलान कहते हैं। बहरहाल लड़ने, मरने, मारने, कतरने, काटने की बातें खत्म है, हम नहीं चाहते इन तमाम चीजों को। तो डिबेट चाहता है तो उसकी मेरी शर्त है, और अग्नि परीक्षा चाहता है तो उसकी भी मेरी शर्त यही है कि अपने बाप को इस मैदान में बुला। तेरे मुतालिक तो मेरा वहम गुमान भी नहीं है, बल्कि अगर तू आना चाहता है तो उस वक्त मुझे बता देना। अग्नि परीक्षा के लिए तू आग में दाखिल होगा, मैं अपनी सिर्फ जूती दाखिल करूंगा, बस इतना काफी है। मैं खुद नहीं, मेरी जूती दाखिल करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तेरे लिए इससे बढ़ करके कोई भी हैसियत नहीं है। तेरे बाप को बुला ले, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ये आखिरी बात कह रहा हूं कि जवाब देने के लिए इस तरह के छिचुंदर बार बार आते रहेंगे तो मैं इन सब के जवाब के लिए हाजिर नहीं हूँगा। सीधी सी बात है, जिसके लिए चैलेंज किया गया है वो पाखंडी मैदान में आए। अब और एक मैसेज आखिर में जाते जाते अपने उलमा, अहले सुन्नत व जमाअत के तमाम नौजवानों से कहूँगा, इस गंदे और निकम्मे और छिचुंदर की वीडियो को इतना ज़्यादा सीरियस ना लें। आप लोग क्यों शेयर कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? और जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ, क्या तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और कुरान पर और रसूल पाक पर ईमान नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि हमारी उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, उंगली भी नहीं जलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हजरात अमन व अमान बरकरार रखें। जो होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेहतर होगा, इसलिए कि हम उस दीन के चाहने वाले हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुव्वत ईमान और अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।